I would like to compliment the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman for having presented a very inclusive, balanced, forward-looking and progressive budget which will set the country on the path to faster economic growth and development. She has given a much needed big relief to the middle class. Everybody whose income is up to 12 lakhs or who's a salary earner up to 12 lakhs 75,000 is now exempt from all taxes. Up to 25 lakhs, there's a continuous reduction in income tax, and then beyond that also everybody saves a lakh of rupees. In a way, the Honorable Finance Minister has met the demand of large section of middle class, particularly as more and more poor are coming into the middle class with rising incomes. The last report was 25 crore poor have now come into the middle class, have been relieved from multidimensional poverty. I think it's a great relief to all those people. Delhi has the highest number of middle class people with government employees, salary earners, traders, small MSME industry, and they will all get a big relief from this budget. Simultaneously, it's a budget focused on the youth, provides a number of opportunities for jobs, whether it is through tourism development. 50 new destinations will be given a thrust for tourism. Udan, which will help 4 crore more passengers and new routes get concessional air travel and activate those airports, whether it's the thrust to manufacturing through toys, leather, the textile sector, technical textile sector, cotton sector. It's a multi-dimensional budget which through various interventions is going to encourage consumption demand, give a boost to economic activity, and at the same time provide stability to the country's economy. The fiscal deficit has been maintained at 4.4%. In fact, the current year fiscal deficit, which was expected to be 4.9, has closed at 4.8%. Next year will be 4.4%, well beyond everybody's imagination. That will help us bring down the overall debt to GDP ratio. And I think it's a signal that on her part, Honorable Finance Minister, under guidance of Prime Minister Narendra Modi, has given to the world that India will continue to be a stable economy. India will continue to work in the Amrit Kal towards becoming a Viksit Bharat, a prosperous nation by 2047. हमने देखा ग्रोथ रेट लगातार नीचे जा रहा था. आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसे समाधान दिए गए हैं कि ग्रोथ अब बहुत सारे समाधान दिए गए हैं. एक तो जब मध्यम वर्ग को आप डिस्पोजेबल इनकम, उनके जेब में पैसा और छोड़ते हैं, इनकम टैक्स में बड़ी राहत देते हैं, तो उससे कंजम्पशन से ग्रोथ को बहुत बड़ा फिलिप मिलता है, बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है. साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर में कई सारे बदलाव किए गए, विशेषकर जॉब ओरिएंटेड सेक्टर्स, लेदर, टॉयज, टेक्सटाइल्स, टूरिज्म, उसमें जो प्रावधान इस बजट में है उससे लोगों को नई नौकरियों का साधन मिलेगा, नई सुविधाएं मिलेंगी, इनकम लेवल्स बढ़ेंगी. और किसानों को भी इस बजट में, चाहे वो उनका फार्मर्स क्रेडिट कार्ड, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से 5 लाख करने की बात हो, चाहे उसमें रिसर्च और इनोवेशन अच्छे सीड्स में हो, मखाना बोर्ड बनाने की बात हो, चाहे वो हमारे कापूस कॉटन फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात हो, पल्सेस मिशन से देश को आत्मनिर्भर बनाना हो तूर, मसूर, अरहर में, चाहे वो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उसके लिए फिर एक बार 10,000 करोड़ फंड ऑफ फंड्स का प्रावधान करना, साथ ही साथ 5 साल और 80 ISC का बेनिफिट स्टार्टअप्स को इनकम टैक्स में छूट देना. एक प्रकार से टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, टूरिज्म का क्षेत्र हो, हर एक को कुछ ना कुछ लाभ और सुविधा देके एक इंक्लूसिव बैलेंस बजट बहुत स्ट्रेटेजिकली सोच के बनाया गया है. बड़े सोची समझी रणनीति के तहत ये बजट 140
करोड़ देशवासियों का बजट है. Do you think it will create jobs also, more jobs? It will create huge amount of job Any opportunities. estimation? एस्टिमेशन तो अब आएगा, एक एक सेक्टर अपना करेगा. पर जैसे लेदर का माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया 22 लाख मोर jobs can be created directly and indirectly with the impactful ideas that she has proposed for the leather and footwear sector. In cotton textiles and garmenting industry, jobs will be created. The skill development thrust and the 5 PM schemes that were announced last year will also make our young men and women more employable, fit for employments, give them skill development and vocational training, and help them to increase their incomes. And on these increased incomes, there will be no income tax up to 12 lakhs. So it's a very holistic budget that will impact the common man, that will impact the middle class, and that will mean more disposable income, giving of impetus to demand in the market. That demand will help businesses, will help people improve their lifestyles, will help manufacturing get a fillip because demand grows. Then obviously there is demand for new manufactured goods. This is a budget for preparing the foundation for Viksit Bharat 2047. पीयूष जी, कैपेक्स हो या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हो, उस पर किस तरह का इसमें ध्यान दिया गया है और लिक्विडिटी कैसे बढ़ाई जा रही है? मतलब इसमें कुछ लिक्विडिटी का प्रावधान है? लिक्विडिटी का काम अधिकांश तो रिजर्व बैंक की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, उसमें हमें मालूम पड़ेगा. लेकिन किसानों को लिक्विडिटी बढ़े तो केसीसी में 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया. एमएसएमईज को टर्म लोन मिले, एमएसएमईज को पैसा सुविधाजनक तरीके से मिले, उसके लिए प्रावधान किए गए. एमएसएमईज की लिमिट्स को भी बढ़ा दिया गया है, जिससे आगे चल के उनको ग्रो करने के लिए भी प्रोत्साहन मिले. साथ ही साथ स्टार्टअप्स जो नए इनोवेशन, नए आइडियाज, टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी प्रावधान किया गया है. तो लिक्विडिटी तो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी. लोन की सुविधा अलग अलग क्षेत्र में, गरीबों को जो हाथ गाड़ी या फेरी पे अपना काम करते हैं, उसको स्वनिधि योजना से और अधिक लाभ मिले. मुद्रा लोन्स की सीमा शुल्क बढ़ा दी गई है. एक प्रकार से हर एक व्यक्ति को और अधिक पैसा हो, और मिडिल क्लास की जेब में और पैसा डालने से तो स्वाभाविक है लिक्विडिटी बढ़ेगी. 1 लाख करोड़ सीधा मिडिल क्लास को सौगात दी गई है. पीयूष जी, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट है, रिमार्केबल है, बट आपके विपक्ष के दोस्त कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल दिशाहीन बजट है और इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय लॉलीपॉप के. भाई साहब, विपक्ष को तो अब आलोचना करना पड़ेगा ही. वो कैसे कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया बजट है? पर आप आलोचना में देखिए, कोई दम नहीं है. कोई आलोचना किस चीज की कर रहे हैं? क्या वो दुखी है कि मिडिल क्लास को, कि दिल्ली के रहने वाले हर व्यक्ति को इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट दी गई है? क्या अरविंद केजरीवाल जी इस बात से दुखी है कि दिल्ली के मिडिल क्लास को लाभ मिलेगा? क्या राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी इस बात से दुखी है कि भारत के मिडिल क्लास को लाभ मिलेगा, भारत के स्टार्टअप्स को लाभ मिलेगा, भारत के किसानों को लाभ मिलेगा, भारत में जो स्टार्टअप्स की दुनिया से जुड़े हुए युवा युवती है उनको और प्रोत्साहन मिलेगा? क्या उनको दुख हो रहा है कि भारत में पर्यटक ज्यादा आएंगे? क्या उनको दुख हो रहा है कि गरीब आदमी भी अब हवाई चप्पल पहन के हवाई यात्रा कर सकेगा और बड़े पैमाने पे? किस बात का दुख है विपक्ष? पीयूष जी, वो कह रहे हैं कि कुछ स्टेट्स को बेनिफिट दिया गया, जैसे बिहार को कुछ अपने अनाउंसमेंट्स कर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से ही कहते हैं कि जो पूर्वी राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जब तक इनका विकास नहीं होगा तो देश विकसित भारत नहीं बन सकता. देश का विकास अधूरा रहेगा. तो अगर बिहार को अगर कुछ सौगात मिलती है, आसाम को कुछ सौगात मिलती है, पूर्वी राज्यों को कुछ अधिक लाभ मिलता है, तो मुझे लगता है तो हम सबको सामूहिक खुशी की बात है. विपक्ष बिहार के लोगों से बताए कि क्या वो दुखी है कि बिहार में मखाना बोर्ड बनने वाला है. कांग्रेस और आरजेडी स्पष्ट कर दे बिहार के लोगों को कि जो बिहार में नए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनने वाले, जो बिहार में नई योजनाएं आई हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने वाला, क्या वो उस बात से दुखी है या बिहार के नेता इसका स्वागत करते हैं? आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को मैं चैलेंज करता हूं
कि वो बिहार में जाके इस बजट की आलोचना करें। थैंक यू पीयूष जी। लेकिन आप दिल्ली का बहुत बड़ा नाम ले रहे हैं इस बार, मैं देख रहा हूँ क्या दिल्ली को तो देखिए, दिल्ली में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बहुत बड़े पैमाने पर रहते हैं। दिल्ली में व्यापार, छोटा व्यापार, मध्यम वर्गीय व्यापार, एमएसएमई सेक्टर के बहुत यूनिट्स हैं। तो दिल्ली के लोग तो विशेषकर इसका लाभ लेंगे। जो दिल्ली में मध्यम वर्ग और सैलरी अर्नर्स इतने बड़ी संख्या में रहते हैं, आर्मी के लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सभी को लाभ मिलेगा। छोटे व्यापारी को लाभ मिलेगा, एमएसएमई सेक्टर के लोगों को लाभ मिलेगा। मैं समझता हूँ दिल्ली का तो हर एक नागरिक आज खुशहाली मनाएगा, और मुझे लगता है कि दिल्ली के हर व्यक्ति को आज बहुत बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है।